Welcome to Import-Export Federation, sir. We are a group of exporters. Import-Export Federation is a service-based company which educate people on exports, import. So we give training, consulting, licensing, and all sort of services. One program is the Dubai Business Tour. In that, many people want to trade with UAE and Gulf market, let's say, and Dubai is a trading hub for that. So they are all associate who are interested in import-export. Everybody is in a different kind of business. So they are coming here with their products and we try to organize meetings with the traders. We talk to them, we promote Indian products and we take the market information also wherever it is possible. We take the market information, we build the network. So metal industry is one of the important industry for India. So there are a lot of people who have the requirement in MS scrap, aluminium scrap and copper scrap. So they requested us to visit the industry and give them some information. So last time also we had come there and we had met some traders also here. This time we came across your profile. So we'd like to connect with you and we would like to understand from you कि ये दुबई में क्या होता है, कैसा मेटल का ट्रेड होता है, यहाँ पे कहाँ से मटेरियल स्क्रैप मटेरियल आता है, क्या कौन कौन से टाइप के मेटल्स यहाँ पे आते हैं और वहां से आगे इंडिया में जो जाता है वो कैसे जाता है, क्या प्रोसीजर होती है. अभी चालू है बंद है वो ठीक है, बट इन जनरल व्हाट इज द प्रोसीजर जनरली. और अगर कोई इंडिया में ट्रेडर्स है या बड़े बड़े स्टील के प्लांट्स वगैरह है, उनको मटेरियल चाहिए, उनकी काफी बड़ी रिक्वायरमेंट हमारे पास है. हमारे एक एसोसिएट है हिरेन जी, इनके पास अभी 6000 मेट्रिक टन का मैंडेट है एक बड़े प्लांट का. तो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि यहाँ से कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का भी इंपोर्ट का भी. पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका कंपनी. कृपाल, टोरंटो मेटल्स. सो सर टेल अस अबाउट दिस मेटल इंडस्ट्री. कौन कौन से टाइप के मेटल्स यहाँ पे स्क्रैप मिलता है सर यहाँ पे? There is all type of material, exactly what you are looking for. This is the main thing. See, देखिए ढूंढने जाओ तो सब कुछ मिल जाता है ना. So you can find it at HMS1, blue steel, GI scrap, aluminium scrap, SS scrap, copper scrap. Whatever you are looking for. Tungsten scrap, radiators, brass, whatever you want. Like from HMS now, if we will talk about the HMS, it has 4 grades, 4 to 5 grades. आपको भी पता होगा. Somebody कोई बंदे हैं यहाँ पे तो 5 ग्रेड के, एक HMS1 है, 2 है, फिर फैब्रिकेशन ब्लू स्टील आ जाता है, फिर ऑफ कट्स आ जाते हैं, फिर रोलिंग आ जाता है, फिर सरिये का रोलिंग है. तो 6 टाइप के तो लोहे में ही बन जाते हैं. तो अभी यहाँ पे क्वालिटी यही चीज, दिस इज मतलब. एंड देन देयर कम्स स्टेनलेस स्टील स्क्रैप, and then there comes copper scrap. Then there comes this building materials that what do you say, rebars और ये सब आते हैं. So this is different kind of material. What exactly you are looking for, I will be able to tell you more precisely if you will come tell me the more precise thing that what you are exactly looking for. That's right. See, there are 2 ways. I mean, let's say we have come here. Agar whatever is available here, if we could tell that, then those people who are watching, they will give us those inquiries. That's the first thing. Second, anyway we get inquiries, then we will keep on passing those inquiries to you. I can export you that much quantity or something, and I'm not exporting. Usually after Corona, we are doing locally only. We are not exporting honestly. We can provide you the local sport, whatever you need. And moreover, here scrap means there is a lot of, means it is coming from the construction sites, it's coming from the industry, it is coming from, now people are starting incineration plants and all that. It will start coming from them. So few industries are there, that's why export is also banned, if you came to know, because local industry wants sport. तो अभी क्या पॉलिसी है यूएई का, मतलब उन्होंने यहाँ पे पॉलिसी बना के पूरा बंद कर दिया? Nobody knows, sir. I have means some few associations are there. And this steel producing industries is there one, and some others are there, 2-3 the members, means these all groups. Actually non-ferrous group was there who were doing, even now non-ferrous. We don't have any clear picture about this. But they have stopped exporting at present. Yes, sir. At present. Yes, sir. And how far that will go, we don't have any idea. Nobody can predict. It's only about MS or all the products? Almost now. There are a few HS codes. I don't know what they were, yield duty or whatever, I don't know that. Yes. So there are, as you know, there are a lot of developments happening in UAE. So the scrap export is banned currently. That's what they are saying. ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ लोकली ट्रेड हो रहा है, मतलब आप जो सब कर रहे हैं. I was doing locally before as well. यहाँ पे जो अभी आप जैसे स्क्रैप के बाकी भी यहाँ पे काफी सारे डीलर्स होंगे शारजा में. There are so many dealers. So from where they get the scrap? There are some tenders
or there's some? I tell you, it is coming from Africa also. Some people are bringing Africa. Right. From Canada, scrap is coming. Okay. From US, scrap is coming. Right. And it is transiting like as this is the thing where in America labor is very expensive. Right. So some people are bringing whole engines. Okay. And they are dismantling over here in Dubai. Right. Some motor scrap is coming from Hong Kong, China, Europe, and here from here it is being exported to India. Okay. So it's how it works. So, Okay. Yeah. Right. So this is particular. That's what I'm saying, that you should have to be specific about what product you are asking for. If you are asking for HMS is produced here only, majority, and some people bring it from Africa also. Right. Yeah. Right. Okay, but what I'm saying, I mean, from Dubai, it is possible to get whatever you want. I mean, अगर इंडिया के किसी प्लांट को जरूरत है स्क्रैप की, तो अगर आप यहाँ आपकी कोई कलीग के साथ बात करें, तो they can definitely help them कि भाई यहाँ से sourcing हो सकता है. You can get. Okay. Quantity wise, there is no issue. Right. This is the only thing that our business fellows, what they are trying to put their point to the government, to UAE government, that UAE government consumption is 50,000 tons, or 60,000 tons, the whole fact, whatever the plants they have there, rolling plants or mills or whatever it has only consumption of 50 to 60,000 tons. Okay. And air production is 100,000 tons. Okay, so there is no need to. Yeah, it's a surplus basically. Okay. So. Okay. They're trying to revoke that. Let's hope for the best. That's what. At present scenario, this is the thing. No export is there. Right. So let's talk about India. So you have any overview of Indian industry? How much they need from all what countries? I think India is the biggest market. If you know, since you are in surveying, Mandi Govindgarh is supposed to be one of the biggest market for scrap. Okay. If you guys know about this or not, so it is Asia's biggest scrap consumer is Mandi Govindgarh. Right. Punjab. Oh, yes. And now people are being shifted to Gujarat, I think so. क्योंकि वहाँ पे easy हो गया सब. Correct. Logistic point of view. हाँ, तो and moreover ports और ये सब and ease of business. मोदी साहब ने बहुत अच्छा कर दिया वहाँ पे, तो काफी प्लांट्स वहाँ चलेंगे अभी. Okay. Especially जो मतलब अपना एलन यार्ड के वहाँ से उनको रोलिंग प्लांट्स मेजॉरिटी जितने भी हैं वो वहाँ एलन यार्ड के पास चलेंगे. तो इंडिया में कहाँ से ज्यादा स्क्रैप आता है? सॉरी, मतलब यूएई से तो आता है इंडिया में स्क्रैप, और कौन से मेजर डेस्टिनेशन है जहाँ से स्क्रैप आता है इंडिया में? तो देखिए जो बल्क है वो यूएस यूके से आता है. ओके. हाँ जी. अच्छा. जो बल्क मटेरियल है यूएस और यूके से आता है. ओके. शिप लोड्स. राइट. ऑस्ट्रेलिया से आता है और दैट इज राइट. तो शिप लोड मतलब बहुत ही बड़े लोग इसमें होंगे फिर. I think MTC वाला one I know that Mehta Trading. Right. And then there are, पता नहीं अदानी साहब भी करते थे हमारे, वो तो भी very richest person now, but they used to do this trade also on the name of some company. Right. Their brother used to do. Okay. Now I don't know if they are doing in this business. Okay. So the other part now, I mean, let's say the scrap material is available. हाँ, scrap material अभी यूएई में available है. तो और इसके रेट्स के बारे में, तो इसके रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं? रेट्स तो सर इंडिया ही डिसाइड करता है. इंडिया ही डिसाइड करता है. आज की डेट में बिगेस्ट मार्केट इंडिया है. जी. टर्की यहाँ से शिपिंग कॉस्ट कम पड़ती है और इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर, नो डाउट. दुबई मार्केट के लिए इंडिया बिगेस्ट कंज्यूमर है. ओके. तो इंडिया से जो डिमांड मतलब प्राइस निकलता होगा फैक्ट्री से कि आज का ये रेट पे स्क्रैप लेना है, उसी रेट से फिर यहाँ पे ज्यादा करके 90% खरीदारी होती होगी. 10% फैक्टर पाकिस्तान का अफेक्ट करता है, बट अभी वो अफेक्ट नहीं कर रहा है. बट 10% व्हेन पाकिस्तान स्टार्ट्स बाइंग, तो फिर इंडियंस के लिए दिक्कत हो जाती है, बिकॉज दे बाय ओनली फॉर a fixed period, 2 months or 3 months, but they buy it at very high price. Very high price. Yeah. Why so? Because it's so not. So नहीं, means okay, 90% of the time India ही decide करता है. अच्छा. 10% of the time पाकिस्तान करता है. जी. Okay. फाइन. तो अभी यहाँ पे प्रोसीजर कैसी होती है? अब लेट्स से कि कोई इंडिया का मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे आपके यार्ड में लेट्स से कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ है, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद आपके पास आना चाहिए या आपके पास कोई रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू ही आना चाहिए? It's not like that. They can approach us directly. Yes. It's not like कुछ, लेकिन what though they कुछ तो देखिए, see everybody. If you are a plant owner, you cannot means connect with all those guys. So definitely you will say, this guy, he will be my representative. Right. Okay, I'll let you do that. Yes. And some people have got the cash, so he has a cash power. So mill is anyway secure, means. Right. So you can say that he is the mediator now. Right.
तो बेसिकली ब्रोकर्स होते हैं, वो जनरली मतलब कैश they invest it, but it is not compulsion that broker must be there, but in Indian market you must have a broker, because who will guarantee the payment? Correct. Like as आप मेरे पास आए हैं, let me हिंदी में उन्होंने बोला कि आप मेरे पास आए हैं, तो मुझे क्या पता यार आपकी पेमेंट जेन्युइन है कि नहीं है, एक सिंपल बात है ना। सो इसलिए इंटेंडर जो है $2 लेता है हमसे, और $1 आपसे लेगा, $2 हमसे लेगा, तो एक्सपोर्टर से लेगा, तो उसकी गारंटी क्या होती है कि पेमेंट सिक्योर है, राइट। बट ठीक है, जब 50% ऑफ द टाइम जब मार्केट ही क्रैश होगी तो व्हाट इंटेंडर विल डू, सब देयर आर सम बिग इंटेंडर्स जो अपनी जेब से भी देते हैं, अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट to secure this transaction and secure the payment, so there is an intender who is taking $2, $1. Yes, sir. So generally you prefer them, you are saying? हाँ, कोई भी अब जैसे you know, let me give you आप आए, आप you cannot buy from anybody, like you came, yes, आप आए यार, ठीक है, अरे कृपाल यार मेरे को माल खरीदना है, एक बात मैं भी ठीक है यार ले लीजिए सर, and I will put anything, you know, you are not going to inspect it, right? So ये थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट का इशू, मतलब दोनों तरीके से, मटेरियल भी अच्छा चाहिए और पैसे की भी गारंटी चाहिए। तो इंटेंडर है जो इंटेंडर है, जो उनको पता रहता है कि भाई कौन सा पार्टी अच्छा है, तो उसकी गारंटी है, उसकी गारंटी होती है दोनों को, ये अच्छा माल सप्लाई करेगा और इनको गारंटी है कि ये पेमेंट बराबर टाइम पे देगा। तो इंडेंटिंग एजेंट क्या यहाँ पे कोई एसोसिएशन है, उसके रजिस्टर्ड मेंबर्स वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ? तो बेसिकली पर्सनल नेटवर्क के ऊपर ही है। दुबई में तो एसोसिएशन इज नॉट अलाउड ना, एक्चुअली दुबई में तो अलाउड ही नहीं, तो कुछ ऐसा है नहीं। तो आपके पास कोई भी इंडेंटिंग एजेंट आ सकता है इंडियन कंपनीज के, एंड दे कैन डायरेक्टली टॉक टू यू, है ना? कुछ इंडेंटर्स नाउन होते, देखिए वही है कि अगर आप मेरे नाउन है, एक दो बार मिले हैं, ठीक है, एक आधी डील करी है तो जान हो जाती है। हाँ जी। तो आगे अभी इस प्रोडक्ट के मेटल इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा है और दुनिया में चलता है, और मेटल के रेट्स इंडेक्स पे चलते हैं काफी सारे। तो ये स्क्रैप के जो मेटल्स होता है, इसका रेट आपने बोला कि इंडियन मार्केट के ऊपर डिमांड सप्लाई वैसे एलएमई पे होता है, इंटरनेशनल मार्केट तो पूरा एलएमई पे है, बराबर। लेकिन एलएमई का फैक्टर कहाँ है कि अब आज एलएमई वहाँ 500 तो, लेकिन यहाँ तो मार्केट 1000 रुपए की है, क्यों? लोकल फैक्टर तो किसी भी मार्केट को वो अफेक्ट तो करते ही है ना जी, राइट। लोकल मार्केट ऑलवेज, इट इज नॉट डजंट मीन कि एलएमई अब बीच में एलएमई का, इफ यू आर इनटू दिस थिंग, you know, एक दिन में निकल $52,000 बढ़ गया था, if you remember it, or I don't know. Yes. So it, and then it all of a sudden it gone 52,000. It went, LME जो थी निकल की 100,000 प्लस चली गई, अच्छा, $100,000 प्लस चली गई थी, and then it crashed. अच्छा। So कुछ उन्होंने बोला जी, then उन्होंने मतलब they stop doing the business for that nickel products. LME ने hedging छोड़ दिया था, that is something else, that is लॉन्ग स्टोरी। तो अब इसमें व्हाट वाज द पॉइंट के टॉकिंग अबाउट, मेटल का रेट कैसे डिसाइड होता है? हाँ, रेट तो इसमें लोकल फैक्टर्स तो मैटर करेगा ही ना जी। अब जैसे यहाँ एक्सपोर्ट बैन है, तो पता नहीं, एवरीबॉडी इज अफ्रेड, तो ये ऐसा ही है कि ओके, मतलब मेजॉरिटी देखो इंडियन बायर है, अभी ठीक है, इंडिया में आज US डॉलर इफेक्ट करता है उनको, देखिए ना, इंडियन करेंसी की भी तो डिवैल्यूएशन हो रही है ना, तो कब 76-78 था, तो आज 82.50 है यहाँ, तो दिस आल्सो इफेक्ट, ये छोटी छोटी चीजें भी इफेक्ट करती हैं रेट्स को, लेकिन इंडियन प्लेयर्स आर द बिगेस्ट वन इन शॉर्ट, मतलब जो इंडिया से ही रेट निकालते हैं। अभी जो करेंसी का इश्यू बोला कि इंडिया का करेंसी अभी डिप्रिशिएट हो रहा, थोड़ा सा हुआ है, तो अभी यूएई का और यूएस का तो फिक्स रेट है जी सर, तो उसके वजह से भी कुछ फर्क पड़ता है ट्रेड में? बिल्कुल। आप देखिए, आपने मेरे से डील कर ली, भाई लेट से $400 में मैं लूंगा, तो मुझे तो $400 मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अगर एक रेट आपको $400 इंडिया में 78 रुपए में मिल रहा था, तो आज 82 में मिल रहा है, तो आपको तो 16,000 तो वैसे ही कॉस्ट बढ़ गया ना पर टन का, बराबर। तो आप बोले कि मतलब डॉलर के नहीं, वो तो नेचुरली बात है ना जी, आपको एक चीज 15 रुपए में मिल रही है, तो वही चीज 20 रुपए में मिलेगी, तो आपको तो महंगा पड़ेगा ही ना वो। तो वहां से फिर उसकी वजह से ट्रेड यहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि सिक्योर्ड हो गया फिर यहाँ पे रेट, है ना? ट्रेड देखो, दुबई तो इज ए हब ना, बिजनेस हब है, नो डाउट। देखो जी, सिंप्लिसिटी तो है ही है, आप कंपैरेटिवली काफी दुबई टू बी, देखिए दुबई का कंपैरिजन तो कोई नहीं इन शॉर्ट जी। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी कोई ऐसा सिटी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया? सर मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूं, मैं इसमें क्या एडवाइस कर सकता हूँ, बड़े बड़े बैठे हुए हैं हमारे, तो
हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट नहीं यहाँ पे भी अभी देखा हमने कि 25-30 साल पहले दुबई नहीं कुछ नहीं था खास, बट अभी लास्ट 25 सालों में ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मतलब है ना। आज भी उनके नंबर जो है ट्रेड के, ना मैं किसी की बात नहीं, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, बड़ा डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ। लट आपने क्वेश्चन किया तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। बड़ी डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ जी। बैठूंगा गाड़ी में, सीट बेल्ट बांधूंगा, आगे देखो पुलिस तो नहीं है, थूकने के टाइम देखो यार पुलिस तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, तो यार मेरा नंबर पहले क्यों नहीं आना चाहिए, मेरा मैं लाइन काट के जाता हूँ। सो हमारी मेंटेलिटी में थोड़ा सा फर्क, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी मेंटेलिटी में फर्क है आता है। मैं गाड़ी का मतलब शॉर्टकट मारना चाहूंगा, यहाँ पे मैं कभी भी रोड का जो वो है क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन इंडिया जाते ही क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ये थोड़े हमारे एटीट्यूड में भी, इवन मतलब कि हम नहीं कर, मैं आई एम नॉट सेइंग, मैं एक जनरल करता हूँ कि अब मुझे आदत नहीं है हॉर्न बजाने की। अब रिसेंटली मेरे इंडिया ट्रिप में मुझे आदत नहीं है, यहाँ पे हमें हॉर्न बजाने की आदत, गिविंग ए जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं चला रहा हूँ, तो कोई इधर से घुस रहा है, कोई उधर से घुस रहा है, तो मेरी वाइफ बोलती की कर रहे हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग? तो मैं बोला यार क्या, बोलती हॉर्न बजाओ, हॉर्न नहीं, यहाँ तो हॉर्न क्यों नहीं बजा रहे? सीरियसली बोले। सो ये चीज है कि जब तक हॉर्न नहीं बजाओ अगले बंदे को समझ नहीं है यार कि तो और यहाँ हॉर्न बजाओ तो समझो गाली है यार, उसने मुझे गाली निकाल दी। कोई ड्राइवर साहब है हमारे यहाँ पे, तो हमेशा का ये प्रॉब्लम हमें, अच्छा वहां पे हॉर्न हमें आदत नहीं है, और वहां हॉर्न नहीं बजाओ तो सुनता कोई नहीं है। ये छोटा सा फर्क है, ये छोटी छोटी चीजें, इसमें हम बोले जी हमारी गवर्नमेंट थोड़ी चेंज करेगी, ये तो हमें एटीट्यूड चेंज करना है कि हाउ वी वांट टू लिव बेसिकली, ये तो हमने करना है। गवर्नमेंट हम बोले जी वो मोदी जी नहीं कर रहे जी, राहुल जी नहीं कर रहे, दिस इज ऑल बुलशिट। मतलब देयर शुड बी चेंज इन आवरसेल्फ यार, ठीक है सबर तो किसी को है नहीं, हर बंदे को घाई है, तो है ही, वो तो हर जगह है। आई हैव बीन ट्रैवल्ड ऑल ओवर, काफी कंट्रीज में गया हूँ, यूके चले जाओ तो उनको भी जल्दी है, लेकिन ठीक है सिस्टमैटिक जल्दी है उनको। ओवरऑल फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या आपको लगता है कि नया जनरेशन जो है भारत का है ना, जो काफी सारे नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, उनको दुबई जैसे सिटी में अपॉर्चुनिटीज और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सकता है? सर इंडिया से बड़े एक्सपोजर आज की डेट में कहीं नहीं मिल सकता है। देखो इंडिया इज वेरी बिग कंट्री सर। दुबई में तो देखिए, दुबई नो डाउट, दुबई में एक चीज है सर कि दुबई में बिजनेस करना बड़ा इजी है। दुबई आपको वो अपॉर्चुनिटीज देती है जो कोई नहीं दे सकता। एक मैं अपनी बात करता हूँ जनरल, इंडिया जाओ यू हैव टू वरीड अबाउट 10 थिंग्स। दुबई में आप रात 1 बजे निकल जाओ, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने 10 लाख की घड़ी भी पहनी है ना, तो यू नेवर थिंक अबाउट, आपने 5 लाख का डायमंड पहना तो कोई सोचने की, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। नहीं बराबर, यही तो ये फर्क तो है। देखो आप बोलो जी दुबई से आज हम इंडिया का कंपैरिजन कर सकते नहीं कर सकते इन चीजों में, ठीक है नो डाउट। दुबई इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है, दुबई तो छोटी मार्केट, लेकिन उन्होंने जो सिक्योरिटी आपको लाइफस्टाइल जो है ना सर दुबई का अलग है। तो जो स्टार्टअप नेचुरली है, अब यंग जनरेशन का बंदा है, अब हमारी यंग जनरेशन तो लड़ेगी नहीं, तो यंग जनरेशन का बंदा तो ऐसी कंट्री लाइक करेगा ना यार, ठीक है यहाँ पे लेस थोड़ी सी पंगेबाजी नहीं है, पेपर वर्क इतना नहीं है। आज दुबई की बात करो तो दुबई में आपको 1 दिन में लाइसेंस मिलता है। There are some setups that you get license in 24 hours. Some there, ठीक है। अब इंडिया में हो रहा है, but it will take time sir. About India है, ये नहीं कि नहीं हो रहा। वैसे दुबई is costly also in some terms, जैसे कि रेसिडेंशियल यहाँ पे काफी कॉस्टली है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे शुरुआत में स्ट्रगल करना या सेटअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। थोड़ा बहुत है, बट यू शुड हैव लोकल सपोर्ट, तो कई चीजों का बेनिफिट हो जाता है, ऐसी बात नहीं। बट उतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, मतलब सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है ही है, ऐसा तो सुना नहीं कोई यहाँ से गया हो। अच्छा, आज तक तो अपनी लाइफ में मतलब कि भाई जिसको यहाँ अच्छा था तो वो गया हो, ऐसा कोई नहीं सुना। हाँ प्रॉब्लम हो गई हो तो वो तो हर बंदे की है, हर जगह होता है। हाँ तो बाकी ऐसा तो नहीं है कि जो मेटल की बात हम कर रहे थे कि प्राइसिंग तो ठीक है, अब जो टर्म्स आपके मतलब डील जब साइन होते हैं, जैसे कि आपके पास मटेरियल है और किसी इंपोर्टर को पसंद आता है, स्पेसिफिकेशंस आर मैच, तो रेट भी मैच हो गया, अब पेमेंट टर्म्स की बात आती है, तो पेमेंट टर्म्स कैसे जनरली होते हैं ये ट्रेड में? आई थिंक 20% एडवांस देते हैं और 80% ऑन द डॉक्यूमेंट्स होता है पूरा। दिस इज व्हाट राइट, आरएलसी
एलसीबी भी होता है। मतलब यहाँ के सारे जो या इंडिया के बाहर से उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, they do it on their क्या सिस्टम उनको, बट ये चलता है मतलब, और ज्यादा करके कंटेनर्स में ही एक्सपोर्ट होता होगा ना। हाँ तो 20 फीट है, 20 फीट कंटेनर्स। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट मेटल इंडस्ट्री। स्क्रैप ट्रेडिंग यहाँ पे होता है, काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे सब कुछ काफी अलग अलग कंट्री से मटेरियल आता है। इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर्स मार्केट है ना। अब हमारे भाई साहब है, सर आप पूछिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली मैं डील करता हूँ एमएस और स्टील में। What's your name, sir? My name is Hiren Kabaria. Official name is Hiren Patel. Hiren Patel. Yeah. जी sir. I am from Gujarat. अच्छा sir. And my base in Valsad and Bhavnagar also. जी sir. इंडिया में L&T, अदानी से, रिलायंस से ऐसे परचेज अभी करते ही हैं। दुबई से मैंने पहले किया था इंपोर्ट 2010 से पहले, फिर 10-12 साल का ये गैप पड़ गया। अभी वापस इंटरनेशनल मार्केट दुबई मार्केट में घुसने की ट्राई कर रहा हूँ कि वहां से डायरेक्ट परचेज करूँ, क्योंकि अभी जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है वो लार्ज क्वांटिटी में आ रही है। आई थिंक हीरेन पटेल जी आपने कुछ मैसेज भी करे थे, आई थिंक सो, टोरंटो मेटल्स के। एनीवेज हाँ शायद आए होंगे। तो उस हिसाब से हमने भी मार्केट सर्च कर रहा हूँ कि कहाँ से हम ला सके, क्योंकि अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है वो थाउजेंड्स ऑफ टन में है। मेरे पास 2-3 मेरे बायर्स जो रियल यूजर है, उनके पास जैसे उन्होंने बताया 6,000-7,000 टन का तो मेरे पास ईयरली एक एग्रीमेंट है उनका कि मैंने उनके लिए परचेज करना। तो उस हिसाब से अभी हम सर्च कर रहे हैं कि हमें कहाँ से बेस्ट मटेरियल बेस्ट प्राइस में मिले। हम HMS1, HMS2 316, 304 में ये मेरा रेगुलर प्रोडक्ट है। जी सर। आप उनको आपका मैंडेट दिखा दीजिए so that we can advise। मेरे पास तो कुछ मटेरियल आते हैं, मेरे पास इस टाइप के मटेरियल आते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी कुछ पड़े हैं। अब हम स्टील बार में भी डील करते हैं, क्योंकि मेरा जाता है सब रोलिंग मिल में। स्टील बार्स लेते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स लेते हैं, और हम लोग इंडिया में स्ट्रक्चर डिजाइनिंग भी करते हैं। अच्छा, स्ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, जैसे भी मेरा L&T में प्रोजेक्ट खत्म हुआ, थाई रिफाइनरीज का हमारा प्रोजेक्ट था, इट वाज द 50,000 मेट्रिक टन का। अच्छा सर। जो हमने थाई रिफाइनरी बैंकॉक को L&T के अंदर बना के दिया है। आपने? हाँ। अच्छा, कौन सी कंपनी से? मेरा एम्ब्रोमैक है। अच्छा। और रिलायंस के अंदर अपना L&T के अंदर मेरा रजिस्टर्ड फॉर्म है अक्षर एम्ब्रोटेक्स। अक्षर एम्ब्रोटेक्स। तो अभी यहाँ पे हमें मानो कि MS ब्रेक है, लेकिन ब्लॉक बैंड किया हो तो SS भी बैंड है एक्सपोर्ट के लिए। कॉपर, ब्रास उसका नॉलेज नहीं। अच्छा, उसका आप करते नहीं? मैं करता नहीं हूँ तो उस चीज का नॉलेज। ओके, बाकी ये स्टील SS और MS पर्टिकुलर कोड में वो आए हुए हैं, मैं इनको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो सब बैन है। ओके, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये बैन कब से लगा हुआ है? सर ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए। ओके, यानी रिसेंटली बैन लगा है। आज के यहाँ का क्या प्राइस होगा? आज 1100-1200 रेट है। तो लोकल मिल्स को 1200 दिरहम पर टन। HMS। और एक क्वेश्चन था कि जैसे इन्होंने कहा कि कुछ इंडिया के लोगों को लगता है कि इंडिया से यूएई एक्सपोर्ट करना है कुछ मटेरियल, मेटल्स में हो कुछ, है ना, तो वैसा भी कुछ पॉसिबिलिटी है, वैसा भी कुछ ट्रेड होता है? सो आता ही है ना, तो लाइट्स आ रही हैं इंडिया से, मतलब मेटालिक जो लाइट्स है काफी, जिप्सम आ रहा है। हाँ, जिप्सम प्रोडक्ट्स आती है, बाकी फूड प्रोडक्ट्स आ रही हैं। नहीं मतलब मेटल स्क्रैप में वगैरह इस इंडस्ट्री स्क्रैप में तो आई थिंक स्क्रैप तो इंपोर्ट करके, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट। मैं आपको, इनके पास सरप्लस मटेरियल है तो व्हाई दे विल इंपोर्ट स्क्रैप। राइट, बट जो इससे फिनिश गुड्स बनते होंगे वो कुछ आते होंगे शायद। फिनिश प्रोडक्ट गुड्स मतलब विलेज टाइप आ सकते हैं। सरिया आता है इंडिया का, सरिया आता है। यही प्रॉब्लम हो रही है कि इंडिया का सरिया इनको सस्ता मिल रहा है। अच्छा। और यहाँ की लोकल मिल्स को महंगा पड़ रही प्रोडक्शन। अच्छा। तो इसी करके वो बैन का बैन कर दिया सारा वो। अच्छा। चल रहा है। सलाई तो बहुत बड़ा मार्केट है फिर इंडिया में, तो बहुत सारी कंपनीज हैं। हाँ जी। तो यू नो एनीथिंग, एनीबडी उनकी जो सलाई यहाँ पे आती है? सर देखिए, जिंदल वाले का यहाँ आ रहा है। अच्छा। जिंदल स्टील का आ रहा है। टाटा का पत्रे की शीट्स होती है, कॉइल्स, सीआर कॉइल्स आ रही है। हाँ, टाटा की आ रही है, जिंदल की आ रही है। ओके। हाँ जी। और क्योंकि यूएई में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। आर्सेलर मित्तल का यहाँ पे काफी आता है। हाँ जी। वहाँ से अगर उसको TMT से अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन है, क्योंकि मैं जिनको मटेरियल देता हूँ दे ऑल आर राइट रोलिंग मिल। तो उनकी अगर मैंने आपको बताया कि सब रोलिंग मिल पंजाब से तो सब उधर चली गई थी ना ज्यादातर। और भावनगर तो सारा पुराना रोलिंग मिल का हब है। अगर वहाँ से अगर कोई TMT बास ऐसा बेचना चाहे तो है कुछ? सर कुछ लोगों ने ट्राई किया है, कुछ कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है।
बट ऑनेस्टली मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है, इस बारे में मुझे कुछ आइडिया, बट आई कैन वर्क इट फॉर यू एंड लेट यू नो, अगर बेनिफिशियल है तो आई विल लेट यू। सो उसके अंदर अगर मानो कि हम आपसे लेते हैं और आपको वापस एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें सर्टेन बेनिफिट्स गवर्नमेंट के मिलते हैं इंडिया में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ड्यूटी में बेनिफिट मिलता है, सेट ऑफ मिलता है, तो उसका भी बेनिफिट वो प्राइस रेंज में हम सरदार बंदा हो ना तो सीधा ही काम जानता हूँ, ना इधर का जानता हूँ ना इधर का, तो वो बढ़िया नहीं हुआ सर, सरदार बंदों का काम मालूम है, सीधा काम करता हूँ, ना इधर करता हूँ ना उधर करता हूँ, ये ड्यूटी व्यूटी बचानी है करनी हो आता ही नहीं, ये मुझे पता नहीं मैम, मुझे नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अगर वो अगर रिटर्न यहाँ पे अगर आते हैं, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इंडियंस आई कैन फाइंड इट फॉर यू, ये मैं कर सकता हूँ, मेरे को 2-4 दिन का वक्त दीजिए। वो तो सर देखिए, वो अगर बोलने जाओगे ना तो ये पत्रे आते हैं वहां से ऑटो के, यहाँ बिलिंग होती है $10,000 की, ठीक है सर, माल होता है $2,000 का, बाकी $8,000 अंडर द टेबल आता है। सो फ्रेंड्स, सो दिस इज व्हाट फ्रेंड्स, ये सब मेटल इंडस्ट्री के बारे में हमने देखा, तो कीप वॉचिंग अस, कीप फॉलोइंग अस। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका नॉलेज शेयर किया, आपका टाइम दिया। डेफिनेटली आई एम श्योर कि काफी सारे लोग ये वीडियो देखेंगे इंडिया में, आपका इंक्वायरीज आएंगे एंड वी विल सी कि कैसे ट्रेड फैसिलिटेट कर सकते हैं, और हम आपको कुछ इंक्वायरीज आएंगे तो हम आपके फॉरवर्ड करेंगे, लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम आपसे लेके उनको देंगे। थैंक यू।